Hi everyone, hope you guys are doing great and staying safe. Now, in the previous live video that I have taken a couple of days ago, we have discussed about a few things that I would be coming up, and I have told you that I would be informing about, what are the plans that I have for at least the upcoming few months. Because for a longer run, I don't think I can say anything right now. It depends on the response coming from and the time availability and everything. But at least for the coming few months, I am in a good position to talk about. But for that video, we will have another one very soon. So you guys can check on the channel. Here, in that particular session only was talked about that can we have a rough strategy for the another year for the students targeting the year 2023, of course, UPSC examination. Now, as I have also told in that video that I do not particularly believe in any kind of strategy because it is very customized, very different from person to person. But a rough sketch probably might be helpful to you. एक प्लान अगर आपको बता दो तो शायद उससे आपको थोड़ी मदद मिल जाए. It has to be absolutely done as per your convenience, your time availability, your level of preparation, what are the other things you are engaged in, and a lot many factors. All of that I have talked about in this video. Stay tuned, try and watch till the end, because if you just leave it in the midway, it is not going to be helpful to you anyway. I have attached everything possible from my side. Let's now continue. In case you're new to the channel, please do like, comment, share, and subscribe. Please do not forget to check the links which are attached in the description section of this video. You get the links for all the playlists. Abhi geography or environment series chal rahi hai, but the other series that I'm coming up with, I'll very soon inform you. So hope to see you guys connected. Stay connected. चलिए, now we will see the sections that I was about to show you. अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन ईयर. दिस इज द सिलेबस रफली, ठीक है, फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड देन यू हैव सर्टेन सेक्शंस फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, आई हैव ऑल द सिलेबस एंड एवरीथिंग अटैच्ड. बिफोर दैट, what you have to remember, please focus on everything that I'm saying here. I'll not take much of your time. I'll try to sum it up in minimum possible time. So assuming that we have the examination UPSC CSE prelims 2023 in the May or the June of 2023, right? This is what I am assuming, for the reason that this is a normal trend जो कि होता है इस ईयर का. बीच में इलेक्शन की वजह से जब स्टार्ट हुआ था थोड़ा डिले होना शुरू हो गया था, अगस्त में होने लग गया था कुछ साल पहले, एंड देन कोविड की वजह से इट ऑलवेज गॉट पोस्टपोन टू अक्टूबर, राइट, फॉर द पास्ट 2 years. बट यूजुअली जो टाइम है दैट इज़ योर मे और जून ही हम रखेंगे. सो दिस ईयर ऑल्सो एज यू हैव द एग्जामिनेशन ऑन द 5th of June 2022. सो आई एम नॉट इवन काउंटिंग मे, ठीक है, सेफर साइड लेके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्रॉम द मे ऑफ 2022, जो अभी मे आ रहा है, से अगले साल के अप्रैल तक, हम अप्रैल ही कट ऑफ मान के चलते हैं, सो दैट वी आर ऑन अ गुड साइड, सेफर साइड. So we have to consider that okay, now there are 12 months, and I'm also assuming that okay, you are a beginner, because if you are at an advanced level, आपके लिए और फ़ायदा है, आपको थोड़ा रिविजन का टाइम ज़्यादा रहेगा. Now you have to note that whatever points I'm going to discuss with you, they are only indicative in nature. They're just going to be a rough sketch for you, only a rough help for you. You will have to modify them as per your time availability and, as I said, your level of preparation. This is the first thing you have to remember. And then we will see things related to current affairs and how can we divide it into different months for the static also. But before that, a quick overlook for the things that you have to actually study. Most of the people don't even prefer to see the syllabus in the beginning. They just feel कि बस शुरू कर देते हैं, कुछ भी उठा के हमें पता है कि हिस्ट्री जोग्राफी तो पूछते हैं, शुरू कर देते हैं. This is now not how it works. You have to be very thorough and precise with your syllabus. Now, very quickly, will not spend much time, very quickly check. This is your scheme for your preliminary and the main examination. In the prelims, you know, you have 2 papers, ठीक है, compulsory papers of 200 marks each, एक GS एक CSAT जिसको आप बोलते हैं, दूसरा वाला qualifying होता है, etc. I'm not going to read all these instructions, you do it for yourself. आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 year, यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक प्रिपरेशन. यू कैन नॉट जस्ट डू अभी चलो जल्दी जल्दी किसी तरह प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स देना है, वो सब काम प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले किया जाता है. जो लोग साल भर की तैयारी लेके चलते हैं और मोर देन 1 year, दे डू नॉट डू दिस थिंग. They do your prelims comes mains approach. So actually their first target should be to finish, get away with all of these mains का thing, ठीक है. तो इसको पहले समझते हैं. You have
2 क्वालिफाइंग पेपर्स, बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि भाई कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है. क्वालिफाइंग पेपर्स, पेपर ए एंड बी, एक लैंग्वेज का हो जाएगा, अनदर इज़ योर इंग्लिश. बट बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग, इसको हम रख लेंगे आफ्टर प्रीलिम्स वाले टाइम में, मतलब फॉर द मेंस, राइट. सो फॉर आफ्टर प्रीलिम्स, तो इस पर अभी नहीं डिस्कशन करेंगे, बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग द पॉइंट्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग विल बी ओनली टिल द प्रीलिम्स. फिर आगे का देखते हैं, पहले तो उतने तक पहुंचना है. Also these papers only require doing of your previous year questions if you are comfortable with either of the languages. अगर आपको लग रहा है आप एक बेसिक डिसेंट मार्क्स ले आ पा रहे हो तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. और जो भी लैंग्वेज यू आर चूजिंग, जस्ट रीड द रीजनल न्यूज़पेपर फॉर दैट एंड यू विल बी गुड टू गो विद द स्टफ्स देयर, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज द पेपर्स विच आर काउंटेड फॉर द मेरिट. सो यू हैव पेपर 1 विच इज़ योर एसे पेपर. नाउ इसके बारे में भी अभी मैंने कोई बात इसमें लिखी नहीं है, बट मीन वाइल द डिस्कशन आई विल इन्फॉर्म अबाउट इट, क्योंकि इसका कोई एक समय हो ही नहीं सकता तैयारी का. प्रैक्टिस तो यू हैव टू डू आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है. रिगरसली यू हैव टू प्रैक्टिस द ऐसे पेपर आफ्टर प्रीलिम्स. बट डज इट मीन दैट बिफोर like prelims or in this 1 year we will not do anything related to essay? Of course not. We will have certain discussions on this, but mainly comes these papers. GS1 में you have Indian heritage and culture, which means your art and culture. Then you have history and geography of the world. History of the world would include everything, right? History of the world would include history of India also, जिसको आप modern Indian history समझते हो, post independence history of India, and of course your world history. So all of that is included here. What you have to particularly focus is that mains में ancient और medieval नहीं होता है. Although I'll give you that list separately also, just थोड़ा सा wait करिए, but remember this. And then you have the geography of the world. Of course it will include India, ठीक है, and the society portion. Then you have governance, constitution, polity in GS2, social justice and IR, international relations, science and technology, economic development, biodiversity and environment, security and disaster management. GS4 then you have ethics, integrity and aptitude to prepare, and then optional subject का कोई भी एक subject जो आप choose करोगे उसके 2 papers हैं. So technically now see how many papers. बहुत focus है, आपको अभी काम करना है, अभी मतलब in this 1 year. That is your, let's for the time being forget about essay, वो उसी में हो जाएगा. So you have to do GS1, 2, 3, 4, ठीक है. और इधर फिर आपका ऑप्शनल का 2, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जिसमें भी आपके सब पार्ट्स हैं. अब ये आपका पूरा डिटेल है जिसको जल्दी से देखेंगे. प्रीलिम्स का बाइफिकेशन कहता है योर करंट इवेंट्स, विच मीन्स योर करंट अफेयर्स. नो वाई एम आई टेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर? आप बोलोगे आप तो मुझे तो ऑलरेडी पता है, वाई आर यू स्पेंडिंग टाइम, आपको तो स्ट्रैटेजी बतानी थी. दैट इज़ द होल आइडिया दैट यू गाइस ट्राई टू जंप डायरेक्टली ऑन द शॉर्टकट्स. इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने आगे बाइफिकेट करा है वो किस लॉजिक पे करा है वो यहीं से निकल के आता है. दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सिलेबस ओनली. That is why you need to be very thorough with this, ठीक है. So spend a few minutes, it will not be a waste for you, trust me. Current affairs of national and international importance. Now इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक. Current affairs is a huge topic to be done and सबसे ज़्यादा problematic भी होता है लोगों के लिए, इस पर हम आगे बात करेंगे. Then you have of course history, geography, polity, governance, economic and social development, environment, ecology and general science, right? This is for CSAT, अपना उसको आराम से you will check. मेंस एग्जामिनेशन में यू हैव जस्ट सीन क्वालिफाइंग पेपर्स ऑफ द लैंग्वेजेस एंड देन पेपर 1 इज़ योर एसे. देन सबका ये डिटेल सिलेबस है, अटैच इसलिए कर दिया है सो दैट इट बिकम्स हैंडी टू यू, ठीक है. इसको पढ़ के मैं कोई टाइम नहीं लगा रही है आपका. ये सारा हो गया एथिक्स का. एंड देन यू हैव 2 पेपर्स एज एन फॉर द ऑप्शनल्स, राइट. अब आते हैं इस सेक्शन पे जो मेरे तरफ से इनपुट है. फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज़ दैट topic or what are those things that you have to only prepare or specifically prepare for your prelims, only prelims, which is our ancient and medieval history, because I have just shown you in the main syllabus it is nowhere mentioned, ठीक है. quickly समझेंगे. मेंस में it is said Indian heritage and culture which is your art and culture, but अगर आप syllabus देखो so art and culture है and then modern Indian history है, freedom struggle, post independence, history of the world. Nowhere it says ancient or medieval history. So whatever ancient टू मॉडर्न टाइम्स, ऐसा नहीं है कि एंशियंट और मिडिएवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, दे आर देयर, बट द क्वेश्चंस फ्रॉम द एंशियंट एंड द मिडिएवल हिस्ट्री ओनली पर्टेन्स टू योर आर्ट एंड कल्चर पोर्शन. द रेस्ट थिंग, लेट्स से इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी ऑफ द एंशियंट एंड इंडियन हिस्ट्री विल नॉट बी कवर्ड हियर, ओनली द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन विल बी कवर्ड हियर. बट व्हेन यू सी द प्रीलिम्स सिलेबस इट सेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो चलो नेशनल मूवमेंट तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया. Now when it says history of India, it is not specifying anything, which means you have to do your ancient, medieval, your modern and your art and culture, ठीक है. आर्ट एंड कल्चर वैसे उसी में काउंट हो जाता है, तीनों का मर्ज हो गए, बट स्टिल.
So that is what you have to done. So prelims के लिए only ancient and medieval are there. I have given you this list very specifically. Then you have certain topics only for the mains. I am only talking about the general studies, not for the optionals. So you have world history, post-independence history, Indian history, governance, international relations, social justice, security, disaster management and society. All from GS 1 to 3, and then your separate GS 4, ethics, integrity and aptitude. Now all of these are only mains related topics, ठीक है. बट अब आता है ट्विस्ट. अब कहने को तो फिर लगेगा कि अच्छा प्रीलिम्स में बस इतना ही है, मेंस में तो इतने सारे, एंड देन प्रीलिम्स कम्स मेंस में तो बस इतना ही है. बट ये बस नहीं है, फॉर द रीज़न दैट इन योर प्रीलिम्स द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज सेक्शंस. जो अभी आपने सिलेबस में देखा, what you just saw in the syllabus, current events of national and international importance. Now that includes everything under the sun. That has no fixed specified syllabus. That is the whole idea. कि जो अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस में नहीं पूछते, पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, नॉट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, बट लेट्स से इकोनॉमिक रिलेटेड इशूज़ हैं, वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, पूछा गया भी है प्रीलिम्स में. एंड द रीज़न इज़, लैंड सीलिंग पर एक क्वेश्चन था 2-3 साल पहले. द रीज़न इज़ बिकॉज दैट कम्स अंडर योर लेट्स से इकोनॉमी. ठीक है, तो अब इकोनॉमी तो है भैया आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस में, तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है. बट उसके अलावा फ्रॉम द गवर्नेंस, अब जैसे गवर्नेंस में लेट्स से योर स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में. इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल they ask you let's say some terminology related to any international institution, or if they're international grouping, they'll ask you how many of these countries are members of that. All of that comes under international relation. social justice, poverty वगैरह, estimates वगैरह जो कि आपके overall economy से overlap करते हैं, that can come here. security related issues, again let's say कोई security में नया डेवलपमेंट हुआ है, कोई एक्ट है, उसके प्रोविजंस हैं, उसके पॉइंटर्स पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, बिल्कुल उससे निकाल सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट बिकॉज इट ओवरलैप्स विथ योर जोग्राफी पोर्शन, दे कैन आस्क यू, वो बन जाएगा जोग्राफी के अंडर में, बट कोर रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का. एंड देन सोसाइटी में अगेन द सोशल इशूज़, दे आर आस्क्ड इन सम फॉर्मेट और द अदर. लेट्स से स्कीम का हो गया या कोई मेजर इशू को लेके हो गया. इशू में दे विल नॉट आस्क यू टू एनालाइज, बट द फैक्चुअल हो गया, कोई रिपोर्ट ही हो गई किसी की, रिपोर्ट्स तो इसमें किसी में भी आ सकती है. Anything can be there. So the current affairs from these sections are also asked in your prelims. So it's not that we can ignore them, right? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसका जो मेंस वाला पर्सपेक्टिव है वो हम अलग से करते हैं, which is prescribed only for your mains. So for everything you have to learn the syllabus by heart, and that is why I've attached it right here. It is there with you also, I know, but you have to remember and just know every single thing in every possible manner. Now then let's see what are your prelims comes mains वाला पोर्शन, जो कि आपको मतलब ओवरलैपिंग है और बहुत अच्छे से इनिशियली करना ही करना है. योर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. दिस इज सो मच, बट इट हैज़ टू बी डन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. ठीक है, अब आते हैं जो मैंने आपको बताया, अज्यूमिंग दिस यू हैव टू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड सिचुएशन मॉडिफाई एंड कस्टमाइज इट एज पर यू. अब शुरू करते हैं क्विकली टू सी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. नाउ इफ़ यू से कि कितना कवर करना है, मोस्टली पीपल आस्क कि यू नो लाइक हाउ मच ऑफ इट शुड बी कवर्ड फॉर अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन. देयर इज़ नो फिक्स लिमिट टू इट. दे हैव इवन आस्क्ड द क्वेश्चंस 2 to 3 years अगो वाला, मतलब जो चीज़ 2 से 3 साल पहले भी रही है न्यूज़ में, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो अब if somebody has been prepared for let's say over 2 to 3 years and maintaining a current affairs notes for themselves, तब तो for them it's convenient. But you cannot go back to all those magazines and prepare और आप परेशान हो जाओगे. So the must one is, like अगर मैं bare minimum पर बात करती हूँ, so the must is for the 12 months, preceding 12 months of the prelims paper, which will be exactly जो हम अभी कर रहे हैं इस ड्यूरेशन को. ठीक है, so May 2020, इसीलिए I am releasing this video right in the end of April, so that you have adequate time to think and customize it as per your need and requirement and start doing it things from 1st of May without any gap. ठीक है, सो 1st of May से लेकर के 2022 से लेकर April 2023 तक तो आपको नॉन स्टॉप करना ही है. अकॉर्डिंगली उसके आगे जब भी एग्जाम का डेट होगा उतना आपको खींच लेना है अकॉर्डिंगली. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर द 12 months विच इज़ अ मस्ट टू डू. बट इफ़ आस्क्ड recommended, now you if you cannot go for let's say 2 to 3 years, ये संभव अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट द बेयर मिनिमम दैट वी कैन डू इज़ फॉर 18 or 16 months.
तो अगर 12 महीने तो कर ही रहे हैं, अगर 4 महीने और ऐड कर लेंगे तो आप जनवरी से कवर कर लोगे, बिकॉज 2022 में 4 मंथ्स आर गॉन नाउ ऑलमोस्ट, सो आप जनवरी से कर लोगे। अगर आप थोड़ा और 1.5 साल का करना चाहते हो 18 महीने, तो आप 2 महीना और नवंबर 2021 से करोगे, ठीक है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू, इसलिए मैंने उसको रिकमेंडेड में डाल दिया, दैट इज़ अप टू यू, आप करना चाहो नहीं करना चाहो, बट दिस इज़ अ मस्ट, यू लाइक कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ दिस। अब बात है कि इसको कैसे करना और इसको कैसे करना है, दोनों का तरीका हैज़ टू बी डिफरेंट, द स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी डिफरेंट। For the must section for these 12 months, for the upcoming 12 months from May 2022, you have to daily do a newspaper reading. You do the Hindu or Indian Express as per your choice and suitability, availability, whatsoever you say. ठीक है, I would say personally doing a newspaper is a great thing. Not just only relying on any ready-made material, because that gives you a very consistent approach. हाँ, टाइम आपको कितना लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप वक्त ले रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव टू फिगर आउट विद टाइम, बट सी न्यूज़ पेपर्स हैव नो सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एनी थिंग विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड इन नेचर, एज आई टोल्ड यू विल हैव टू कस्टमाइज एज पर योर नीड, ठीक है। then you will have to also follow, मतलब you should actually, I'll not say कि it is a must thing, but if done along with the newspaper, it is very good. The reason I'm telling you, because at max you will be able to follow either of the newspaper, only one newspaper. Then there are things coming in PIB, some other sources, some other magazines, right? Every day on a regular basis you cannot do it, आप नहीं कर सकते. So that website, their work is to compile all of these for you. तो वो आपका काम आसान हो जाता है. So some of the informations will already be the same which you would have done from the newspaper. तो उसके लिए तो आपको परेशानी होगी ही नहीं. अब जो एडिशनल चीज़ें वो आप उस वेबसाइट से ले लो डेली बेसिस पर. दिस इज़ अ डेली थिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि ये 12 महीने का हमको रेगुलर करना है हर दिन. फिर आ गया जब मंथ खत्म हो जाए, फॉर द रिविजन क्विकली गो फॉर एनी मैगजीन मंथली कंपाइलेशन. डोंट यूज़ द सेम वन जो आपने वेबसाइट वाली यूज़ की होगी, क्योंकि उसके तो आपने डेली कर ही लिए ना, तो सेम चीज़ को वो कंपाइल करके मंथली बना देते हैं. सो डोंट डू इट, यूज़ सम अदर सोर्स, ताकि अगर कुछ एडिशनल, और देयर विल बी हार्डली एनी फ्यू एडिशनल थिंग्स, जो आएगा उसको करो. मंथली आपका ऐसे फिनिश हो रहा है, ठीक है. मेहनत है, आई अंडरस्टैंड, कहना बहुत आसान है, मेहनत है, बट फिर जो चीज़ चाहिए वो भी तो बड़ी है ना. छोटी चीज़ के लिए तो आप लड़ ही नहीं रहे हो. MCQs बेस्ड ऑन देम हैव टू बी डन ऑन अ वेरी डेली बेसिस. हर वेबसाइट 5-5 निकालती है, वैसे तो इसके लिए भरे पड़े हुए हैं एप्लीकेशंस एंड चीज़ें जहाँ पर कि आप डेली बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. जब फ्री टाइम में 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के MCQ सॉल्व करते रहिए साथ में, ठीक है. सो दैट यू चेक दैट वट एवर यू आर रीडिंग यू आर रिटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और नॉट. दिस इज़ ओनली फॉर द करंट अफेयर्स. And of course, gradually as you go into that process 2 to 3 months down the line, start answer writing on the current affair issues. जो भी आप डेली पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे एक आध दो क्वेश्चन या एक एक पेपर के एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी उसको करना शुरू करें. अब बात है कि ये जो बैकलॉग्स थे फॉर द रिकमेंडेड थिंग, इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लेट्स से 16 और 18 मंथ्स, तो पिछले 4 या 6 महीने के अगर करने हैं तो वो कैसे करेंगे. सो फॉर द बैकलॉग्स ऑफ पास्ट 4 to 6 months, इफ़ यू ऑन अ रफ, और मैं बिल्कुल आराम से आपको ये जो टाइम फ्रेम दे रही हूँ, बिकॉज यू डोंट हैव टू हरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है. अब क्या होता है, यूजुअली लोग जो साल भर नहीं कर रहे होते हैं करंट अफेयर्स, अगर उनको 1 से 2 महीना पहले ऑफ द एग्जाम करना होता है तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. उसमें उनको 2-3 लगा के एक महीना ख़त्म करना होता है. आपके पास तो वक्त है. सो लेट्स से इवन इफ़ यू आर डिवोटिंग 7 to 10 days फॉर ईच ऑफ द पेंडिंग मंथ, ठीक है, तो अगर 4 महीना है तो भी अगर आप 7 दिन लगा रहे हो 1 महीने के लिए, तो भी यू आर स्पेंडिंग लाइक 28 days रफली, लेट्स से 1 month, ठीक है, तो भी आप आराम से ख़त्म कर लोगे. अगर 6 महीने लगा रहे हो तो आप कितना टाइम ले लोगे, 1.5 महीने या 2 महीने. अगर आप 10-10 दिन भी लगाते हो एंड इफ़ यू आर डूइंग 6 months का, तो भी 60 days लगेगा, मतलब तो भी 2 महीना लगेगा. तो भी मैक्सिमम, मतलब मैं बिल्कुल आई एम टेकिंग द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम फॉर यू, तो भी यू विल टेक ओनली 2 months टू फिनिश, ठीक है. सो डिवोट 7 और 10 days फॉर ईच ऑफ द मंथ, प्रीवियस मंथ्स जितने का भी आपको करना है, 4 या 6, फ्रॉम एनी वेबसाइट कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन जो आपको सूटेबल हो, क्योंकि नाउ फॉर दैट यू कैन नॉट गो बैक टू द न्यूज़ पेपर्स एंड डू, सो डू इट फ्रॉम द मैगजीन. स्टार्ट राइट फ्रॉम May 2020 दिस एक्सरसाइज ऑफ डूइंग द प्रीवियस वन. ये नहीं कि बाद में जब पहले अभी मई से करना शुरू करते हैं, जब टुवर्ड्स दी प्रीलिम्स जाएंगे तो पुराना करेंगे, नहीं, इसको करके ख़त्म करिए अगले 2 महीने में कैसे भी, and finish all the pending current affairs at max by July, mid of July. मैंने तो बोला है कि आपको मैक्सिमम 2 ही महीने लगने चाहिए. अगर आप 7 दिन ले रहे हो, 10 दिन ले रहे हो तब भी, 4 महीना ले रहे हो, 6 महीना ले रहे हो तब भी, आई गेव यू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट. फिर भी कभी कुछ रह जाता है, कभी थोड़ा बहुत बच गया, तो आप 15 दिन एक्स्ट्रा ले लो, बट बाई मिड ऑफ जुलाई फिनिश ऑल योर पेंडिंग करंट अफेयर्स बाई एनी कॉस्ट. और इधर जो मई ऑनवर्ड शुरू होगा,
ये तो आपको साथ साथ ही डेली का करना होगा. किसी दिन रह जाता है तो उसको आगे पीछे मैनेज कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड ऑफ कोर्स सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉरी MCQs बेस्ड ऑन दैट करंट अफेयर्स. अब आते हैं स्टैटिक पर. Now again, assuming that you are a beginner, so in the static you will have certain things to remember. Firstly, you will have to build your basics. Now if you're not a beginner, if you have given examination earlier, if you are known to the basics, आप अपना फिर एडवांस्ड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो. ठीक है, मैं बिल्कुल ज़ीरो के हिसाब से बात कर रही हूँ कि तो भी एक ईयर में कैसे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं. सो बिल्ड योर बेसिक्स. हाउ डू यू बिल्ड योर बेसिक्स? यू विल हैव टू डू दी NCERTs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द सेक्शनल PYQs. जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसका सेक्शनल PYQ. कौन सा PYQ? प्रीलिम्स का. अभी मेंस के लिए बात नहीं हो रही है. ठीक है, हाउ मच टाइम यू कैन टेक अगेन विल डिपेंड ऑन योर लेवल. लेकिन मैं मैक्सिमम जो बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा इट कैन नॉट एक्सीड. अगर आप इससे कम में कर ले रहे हो, गुड इनफ. सो May, June and July, for the next 3 months, your focus should be only on building your basics. If you can cut it down to let's say 2 months, very good for you. But maximum is what I'm talking about. Then by the time you should also focus on, अब ये जो 3 महीने ऐसा नहीं है कि खाली NCERT करना है ना. NCERT तो करना ही है, पुराना करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी कवर करना है एंड डेली करंट अफेयर्स भी करना है. ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक. Meanwhile, in these 3 months only, you will also figure out an optional. अपने कन्वीनियंस से आप एक ऑप्शनल फिगर आउट कर लोगे बेस्ड ऑन योर स्टडी मटेरियल अवेलेबिलिटी, कोचिंग अवेलेबिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक्स एक्सेट्रा. वो आपकी चॉइस होगी. आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन दैट. बट योर ऑप्शनल शुड हैव बीन डिसाइडेड बाई जुलाई, so that you straight away start from August. Now of course this is for people who are not taking any coaching for the reason कि coaching का बैच वो कब शुरू कर रहे होंगे वो मुझे नहीं पता है. So that you have to adjust with that. ठीक है, आप उसके हिसाब से करोगे. मैं तो सेल्फ स्टडी को लेके बात कर रही हूँ. अब ऑप्शनल के लिए यू विल डिवोट लेट्स से अगस्त से नवंबर और दिसंबर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर लेंथ ऑफ द ऑप्शनल and of course your level of understanding, everything again is depending. So August, September, October, November, तो भी ये 4 महीना होगा या 5 महीना होगा. 4 to 5 months is decent enough time for your optional. ठीक है, but by this year end anyhow at least one read of the optional should have been finished. PYQs and the answer writing has to be done simultaneously. थोड़ा करके करना है, लेकिन एक रीड बहुत ज़रूरी है, so that after the prelims you have already the material in hand. You will just have to revise and solve more of the answer writing things. ठीक है, अब ये हो गया हमारा साल ख़त्म by December 2022. मूविंग ऑन टू द एडवांस जनरल स्टडीज़ टॉपिक्स. ठीक है, अच्छा इसके साथ भी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें छोड़ रहे हो ना. करंट अफेयर्स वाली सारी चीज़ें आपको करनी है एंड थोड़ा जितना GS का, इसको मैंने लिखा इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ सेल्फ अंडरस्टूड कि वो आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, कौन सा GS सब्जेक्ट्स आपको पहले करना है. ऐसा नहीं कि इस बीच में आपको GS टच ही नहीं करना है. नो, नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट अ स्ट्रिक्ट बाइफिकेशन सो दैट आपकी चीज़ें आपको समझ में आने लगे. ठीक है, और बाकी यहाँ जो आप NCERTs के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी GS के करोगे ही, तो उसका भी एडवांस्ड आप धीरे शुरू कर दोगे. बट द आइडिया ऑफ टेलिंग दिस इज दैट योर फोकस इन दीज मंथ शुड बी ऑन द ऑप्शनल. इट इज़ अबाउट द फोकस, मेजॉरिटी पार्ट, बट नॉट द ओनली पार्ट. ठीक है, बट जब हम, इसलिए मैंने बोला, देखो जनरल स्टडीज़ भी मैंने ओवरलैपिंग में डाला हुआ है. अब इस बीच के जो जनरल स्टडीज़ में आप करोगे अलॉन्ग विद द ऑप्शनल, वो क्या क्या आप करोगे अगस्त टू नवंबर में. यू विल डू द प्रीलिम्स प्लस मेंस के सब्जेक्ट्स. आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द प्रीलिम्स comes main subject, all of these like history, geography, economy, polity, science, tech, environment, ये सब जो मेजर है. ठीक है, इसको पहले प्रायोरिटी में ख़त्म करना है. सो बाई नवंबर और लेट्स से बाई दिसंबर आप अपने अकॉर्डिंग इसको जस्ट फिनिश करेंगे. मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर राइटिंग देखेंगे, प्रीलिम्स के भी देखने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को करना शुरू कर दीजिएगा. बिकॉज नाउ बाई दिस टाइम यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैव सम कॉन्टेंट टू राइट द आंसर. दिसंबर टू जनवरी अगर आप देखते हो, अगर आप इसको बाई नवंबर ख़त्म कर पाने में सक्षम हो, केपेबल हो, तो दिसंबर टू जनवरी फोकस ओनली ऑन द मेंस सब्जेक्ट एंड द PYQs. नो यू नो व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स. छोटे हैं इसलिए उसके लिए कम टाइम रखा गया है. ठीक है, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज सी लाइक गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सम ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट हो गया, सोसाइटी हो गया. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अगर कुछ नया आता है, ठीक है, तो करंट में आ जाएगा, अदरवाइज स्टैटिक. तो स्टैटिक के नाम पे तो आपको बहुत बेसिक थोड़ी चीज़ें करनी है. एंड ऑल ऑफ दीज ऑल्सो हैव थोड़ा सिलेबस. ठीक है, तो उसमें तो करंट अफेयर्स के साथ तो चीज़ें ऐड हो ही रही हैं. आपको सिर्फ एक स्टैटिक का अपना एक बना के रख लेना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है. सो दैट यू विल डू ओनली मेन स्पेसिफिक बाई जनवरी.
मूविंग ऑन फ्रॉम फेब्रुवरी, तो हमने तो एक रफ एस्टिमेट रखा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, बट इवन इफ लेट्स से यू गेट मे गुड इनफ, बट लेट्स से ओनली अप्रैल. सो फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 months minimum has to be devoted only and only prelims oriented study, PYQs and the mocks. रगड़ के मॉक्स लगाने हैं इसमें, ठीक है, कुछ नहीं रुकना है. और आपने अपनी सारी तैयारी पहले से अगर की हुई है तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, अगर आपने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली समझा और फॉलो किया है तो. नाउ ये तो एक रफ स्ट्रैटेजी होगी. अब अगर किसी ने मुझसे ये एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं आपको महीने वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके दूंगी, नो. द रीज़न इज़ दैट आई कैन नॉट डिसाइड इट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. यू विल हैव डिफरेंट सिचुएशंस, तो वो आपको डिवाइड करना. मैंने आपको एक ओवरऑल प्लान दे दिया, अब उसके अंदर 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 आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है. स्टार्ट मेकिंग इट राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल. टुडे इज 26 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस. अभी करते करते शाम हो चुकी है, रात हो जाएगा, ठीक है. फॉरगेट 26, बट 27, 28, 29 एंड 30th ऑफ अप्रैल, 4 दिन हैं. अपने इस प्लान को अपने अकॉर्डिंग बनाइए एंड 1 मई से स्ट्रेट अवे फॉलो करना स्टार्ट कर दो आप लोग. अब ये कुछ पॉइंटर्स मैंने अपने तरफ से लिखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है आई नीड टू शेयर just as a mentor, if you say so, or you take it as a friend or an elder sister, whatsoever. If it suits you, good enough. Let's say try to study 6 days per week, and these are not as such copy pasted from anywhere. अपने मन से जो आया है, I am conveying it to you. Try to study 6 days per week. Choose any one day off, ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू चूज़ ओनली संडे ऑफ. चूज़ एज पर योर कन्वीनियंस. अगर आपको संडे को लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, लेट्स से फॉरगेट यू फॉर एग्जाम्पल इफ आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू विल ऑफकोर्स प्रेफर सैटरडे एंड संडे टू स्टडी मोर, राइट. देन वीक का आप अपने हिसाब से, अपने ऑफिस आवर्स के हिसाब से कोई एक दिन थोड़ा हल्का जो रहता है उसको छुट्टी का ले लो आप अपने लिए, ठीक है. सो ट्राई टू स्टडी 6 days पर वीक. एक दिन ऑफ लेना है. किस ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा रिविजन जो भी आपने 6 दिन में करा, कंसोलिडेटेड. इफ़ any backlog is there, because every time it's not important you will be able to meet your targets, so cover your backlogs and use it that day off for your relaxation, ठीक है. दिमाग शांत करके अपनी चीज़ों जो आपको खुशी देती है वो करना है. 1 hour डेली एटलीस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम शायद आप अफोर्ड ना कर पाओ, बट एटलीस्ट आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम तो कर ही सकते हैं. और उसको आधा घंटा में ब्रेक करना मेरे अकॉर्डिंग, आधा घंटा मॉर्निंग, आधा घंटा इवनिंग. इट्स बेटर दैन जस्ट डूइंग इट एट 1 hour एट अ स्ट्रेच. मुझे ऐसा लगता है डिवाइडेड, ताकि आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों फ्रेशन अप रहे, ठीक है. ऑन योग, मेडिटेशन, वॉकिंग और एनी हॉबी इफ़ यू हैव, डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर करिए. और इस रिलैक्सेशन में भी ट्राई टू यूज़ द टाइम फॉर योर हॉबी, ठीक है. ऑल्सो इफ़ एनी थिंग और एनी वन, दिस इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग, बिकॉज हमारी जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी ये एनी वन वाला फैक्टर ही होता है. एंड दैट कुड बी एनी वन, family, friend, relationship, or WhatsApp, office people, like colleagues, or I just don't know, but anything or anyone which is a hindrance right now in your dream, in your preparation, immediately abandon that thing. Or then you do not have to think much. If you will keep thinking, take it from me, I am a live example. I'm telling this live on my channel. I'm a live example. आप कितना कुछ खराब कर लेते हो आपको नहीं पता चलेगा. थिंग एंड पर्सन बोथ मैटर्स. तो कुछ भी है जो आपके लाइफ में रुकावट है, हटा दो. 1 साल के लिए तो हटा ही दो. एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. आप मूवी देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, कोट सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, कोट्स लगा रहे हो, पिक्चर्स, व्हाट्सएप, ठीक है, सब कुछ है. लेकिन इट कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर इंटरनल मोटिवेशन, बिकॉज दिस इज़ वॉट विल कीप ड्राइविंग यू एवरी सिंगल डे. दिस विल ड्राइव यू फॉर सम टाइम, ठीक है. कुछ मिनट अच्छा लगा एकदम से तो आप काम करने लग जाओगे, बट योर इंटरनल मोटिवेशन विल ड्राइव यू एवरी सिंगल डे. इस पर फोकस करना है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. what is the reason of you doing this? Everybody will have some or the other reason. I am not going into the details of this reason. आपको सोशल सर्विस करनी है, नहीं, अपने फैमिली के लिए करना है, अपनी प्रेस्टीज के लिए करना है, अच्छा काम चाहिए था, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए मुझे नहीं पता, बट यू विल हैव सम रीज़न. ऐसे तो आंख बंद करके नहीं घुस गए होगा ना. हर चीज़ लाइफ में करने का एक रीज़न होता है. The reason of you doing this, irrespective of whatever is that reason, you don't have to justify this to anybody. So that reason should be given the topmost priority. आपको उसको अपनी प्रायोरिटी बनानी है rather than anything or anyone or any situation. ठीक है? The more you look for the shortcuts, the more you are losing out. Take this from me again. Although I am not somebody who has ever favored shortcut, तो मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ because I have seen people taking shortcuts and not reaching anywhere.
ठीक है. I always believe in your original hard work. I repeat, original hard work. If you are relying on this spoon feeding रेडीमेड मटेरियल का बिल्कुल आप मदद लीजिए. बहुत लोग कहते हैं, मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं, अरे और लोग तो हमारे लिए काम कर ही रहे हैं, हमें क्यों मेहनत करनी है. लाइक यू नो द अदर वेबसाइट्स और कोचिंग मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो हमारे लिए कर रही है. वाई विल वी स्पेंड टाइम? बिकॉज उनको एग्जाम नहीं निकालना है, आपको निकालना है. वो तो आपका चेहरा ऐसे ही चिपका देंगे. आपने वहाँ पर एक टेस्ट भी दिया होगा, एक मॉक इंटरव्यू में भी बैठे होगे, लगा देंगे वो आपका चेहरा बस ऐसे ही फॉर द टॉप. दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट. देयर वर्क इज़ टू डू वट एवर दे हैव चोजन टू. आप उनसे हेल्प लीजिए ना. लाइक आई सेड इन योर करंट अफेयर्स, ठीक है, योर बेसिक सोर्स शुड बी योर न्यूज़ पेपर, बट योर एडिशनल हेल्पिंग सोर्स शुड बी योर वेबसाइट और मंथली मैगजीन. बिल्कुल लीजिए. कर रहे हैं वो आपके लिए काम, तो 4 अदर सोर्स से कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम जाएगा, तो आप वो नहीं करो, वो बेवकूफ़ी है. लेकिन नॉट डूइंग इवन द बेसिक थिंग बाई योर सेल्फ एंड रिलाइंग ऑन सम रेडीमेड कट शॉर्ट मटेरियल. अरे अगर ऐसा ही हो रहा होता तो एक कोचिंग में जहाँ 10,000 बच्चे बैठ रहे होते हैं बैच में. ऑफलाइन कोचिंग्स में यही होता है, फेमस कोचिंग्स में, ठीक है. और ऑनलाइन में तो आपको पता ही है, इट्स इवन मोर. ऑलवेज गो फॉर कितने रिजल्ट्स आए. इवन इफ़ यू डिसाइड टू ज्वाइन एनी कोचिंग ना, यू शुड ऑलवेज चेक, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो. दैट इज़ द ओनली पैरामीटर यू शुड चेक कि आपके रिजल्ट्स वहाँ से कितने आ रहे हैं. सी, देयर आर 2 things that I would very particularly and precisely talk about. If you have to check if any coaching or guidance, offline or online whatever, if any coaching or guidance is relevant for you or not, the best way is to see the results. If you have not seen the results in the past, original results, I'm not talking about the tests and interview वाले result, original, जिस बच्चे ने कहा कि हाँ भाई मैंने यहाँ का बैच अटेंड करा और इस बैच की वजह से मुझे मदद मिली और मैंने निकल गया, उसको रिजल्ट कहते हैं. इफ़ यू सी दिस, गो फॉर दैट कोचिंग इफ़ यू हैव मनी टू स्पेंड. आजकल के टाइम में वैसे सेल्फ स्टडी से सब हो सकता है, बट स्टिल इफ़ यू हैव टू ट्रस्ट एनी मेंटोर, anybody, again, no matter how famous the person is, I really do not care. If you have to trust the mentor, see that whatever they are teaching, if you could have solved the PYQs based on that or not. अगर आपसे यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं उनके कराए हुए चीज़ों से या उनके क्लासेस से या उनके नोट से, गो फॉर दैट मेंटर, ट्रस्ट. ठीक है, दिस शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया टू डिसाइड. एंड शॉर्टकट्स एब्सोल्युटली ख़त्म, अवॉइड भी नहीं, ख़त्म. ठीक है. Next is, nothing beats hard work and determination. I am not telling that it will guarantee your result. No, because results come from n number of factors. Especially what is your situation on the day of the examination. Actually सारी कहानी तो साल भर की मेहनत की उस day of the exam पे निकल के आती है. ठीक है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू जो भी हो. बट हार्ड वर्क और determination का क्योंकि कोई substitute नहीं है, तो nothing beats it. Focus on this and let people laugh. This is very important for you to just फिट दैट इन योर माइंड. हंसने दो, कमेंट करने दो, ह्यूमिलिएट करने दो, उल्टी सीधी बातें बोलने दो, डीमोरलाइज करने दो, आपको कर लेने दो. आज उनका वक्त है, कल आपका वक्त होगा ही. इसमें नहीं तो किसी और चीज़ में होगा, पर होगा. इसकी नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी ना. लाफ ऑन देयर थॉट्स एंड एक्शंस विद इन. अपने अंदर हंस लो आज उनके ऊपर. आप अगर आप पे कोई हंस रहा है, आप पर टिप्पणी कर रहा है, टिप्पणी ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेरोगेटरी, बट इन द सेंस दैट इफ समबडी इज डीमोरलाइजिंग यू, लेट देम डू इट. आप अंदर में हंसो उनके ऊपर और अपना काम शांति से करते रहो. लेट योर एक्शंस स्पीक, लेट योर रिजल्ट स्पीक. साइलेंस में काम करो, हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ आवर्स, द क्वांटिटी नेवर मैटर्स. इट मैटर्स ऑलवेज लेस दैन द क्वालिटी अचीव्ड. 1 घंटे पढ़ के भी अगर एकदम क्वालिटी एजुकेशन वाला काम कर लिया, मतलब लर्निंग कर ली और उससे 5 PYQ सॉल्व कर लिए, वो ज़्यादा बेटर है रादर दैन 3 घंटे पढ़ के 1 PYQ या 0 PYQ सॉल्व कर पाना. ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी रादर दैन द क्वान्टिटी. एनीवेज द क्वान्टिटी विल be different for all of you based on your situations, but the quality, it will remain to yourself, and it is in your hand what quality you are putting to get your thing done. Also, this is again very important. See, the yoga, meditation and everything that you will do, of course, will keep you physically fit and to a level mentally also very calm and peaceful. But you have to remember that only if your mental peace is intact, it will happen. All of these that I have talked about by far will happen. अगर आपका mental peace ठीक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते. Again, इस चीज़ को ले लीजिए. This is the key to success. हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन वो सब भी है ही. सिलेबस है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सब कुछ है. लेकिन अगर कोई एक चीज़ आपको आपके साथ हर वक्त रहेगा, जो आपका साथ देगा, जो आपको बिल्कुल
गिरने वाले स्टेज से भी खड़ा कर देगा. इफ समथिंग विल जस्ट मेक यू राइज आफ्टर यू हैव फॉलन लाइक एनीथिंग, दैट इज योर मेंटल पीस. You have to keep this intact, and anything which is causing a trouble for your mental peace needs to be discarded right away. And trust me, nothing or no one is going to be of any help except you, not even your closest people if you think so. सक्सेस के बाद तो देखिए सब साथ ही होते हैं. बात है कि इस जर्नी में कोई आपकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता. प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ. improve yourself every single day. It is about you, it is about your improvement. It's about आपकी situation कहाँ जा रही है. It is about आप अपने साथ क्या कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को लेके कितना justify कर रहे हो. ठीक है. Every single day you have to have that improvement, and if you can track your improvement both in terms of your पढ़ाई का thing, the things you have achieved as per your syllabus, and also as a personality, if you are able to track that on a regular basis, please do it if it is possible for you. And it's always you versus you. ठीक है. इट्स सी यहाँ पर इतने सारे लैक ऑफ दी पीपल सिट एंड देन सम फिगर आउट इन दी रिजल्ट, एंड फाइनली जो भी 5-6 हज़ार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं उसमें से 700-800 निकल के आते हैं. और जो प्रीलिम्स में तो 5-6 लाख बैठते हैं, 10 लाख फॉर्म भरते हैं. हाउ विल यू नो योर कॉम्पिटिटर? दिस इज़ नॉट अ कॉलेज और अ स्कूल एग्जाम कि आपके पास 30-40 बच्चे हैं, या लेट्स से यू हैव 60 पीपल एंड यू नो दैट ओके यू आर कॉम्पिटिंग अमंग्स देम एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट देम, क्योंकि आप उनके कॉन्स्टेंट मिड टर्म एग्जाम्स में रिजल्ट जान रहे होते हो. ठीक है. बट हियर योर कॉम्पिटिटर्स आर लाइक एनी बडी. रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, हर तरीके के लोग हैं, एंड आपको कुछ नहीं, हर बैकग्राउंड के लोग हैं, एज के लोग हैं, जेंडर के लोग हैं, आपको समझ में नहीं आएगा. सो इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू. आपका हर दिन का इम्प्रूवमेंट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव दिस. Release all and any kind of toxicity in terms of relationships, in terms of mental thing, in terms of physically. ठीक है. अच्छा खाना खाना is very important, fit रहना is very important, sleep cycle is very very important. Please do not neglect the significance of that. But any kind of toxicity, just release it. हटा लो यार, मतलब just हटा लो, मतलब I cannot emphasize more on that. And in the end, know that whatever it is just a process. You have to figure this out very precisely and clearly. ये सिर्फ एक process है. आप जो भी achieve करना चाहते हो वो इसके बाद होगा. ये result is not your final thing. That is not the end. That is just a means. It is just a process. So you have to get involved in this process. You have to trust the process and trust yourself and come out of this stronger and better. रिज़ल्ट जो भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट, आप इससे बेटर निकलोगे, आप इससे स्ट्रॉन्गर निकलोगे. दैट इज़ फॉर श्योर. नथिंग एल्स शुड मैटर फॉर द नेक्स्ट 12 months. नथिंग एल्स, नो वन एल्स. इट इज़ यू, योर हार्ड वर्क, योर डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग. देख लेंगे बाद में, काम नहीं है, कुछ नहीं है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लड़कियों को शादी के लिए परेशान किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. अगले 12 महीने सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है. एंड ऑल माई लव, बेस्ट विशेज़, गुड हेल्थ के लिए, प्रेयर, सब कुछ के लिए अच्छी चीज़ तरीके से आप सक्सेसफुल हो जाओ. फ्रॉम मी टू यू ऑल. एंड वन लास्ट थिंग, ऑल्दो आई हैव डन एवरीथिंग दैट वाज सपोज टू बी, कि मैंने एसए और सीसैट के लिए कुछ नहीं बोला. उसका रीज़न ये था बिकॉज उसकी कोई फिक्स टाइमलाइन या स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है. तो क्विकली आई विल जस्ट टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स CSAT और essay के लिए. Now essay में if you have the knowledge of your GS 1 to 4, it will already happen. So once you are in that stage after let's say 5 to 6 months, when your many of the GS subjects are completed, when you are thorough with your newspaper reading, current affairs की आपको knowledge हो रही है, तो PYQ से essay उठा के हर एक हफ्ते में या 5 दिन में just write one. ठीक है. ऐसे करके बिफोर द प्रीलिम्स ओनली आपके 5, 7, 10 तो आराम से हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड देन आफ्टर द प्रीलिम्स रिगरसली प्रैक्टिस फॉर द एसे. रही बात CSAT की, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर द बेसिक CSAT स्टफ्स, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है. पीपल टेक इट लाइटली एंड ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो जस्ट इसके लिए बेस्ट सोर्स इज़ ओनली द PYQs. फर्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs फ्रॉम 2021 बैकवर्ड्स. ठीक है. उससे लेके आप जहाँ तक जा सकते हो 2011 तक तो एग्ज़ाम के पहले ज़रूर कर लेना, उतना तो करके ही जाना. मतलब ये फाइनल एग्जाम के लिए बोल रही हूँ, जो आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा. अभी के लिए थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट सीइंग द PYQs. इफ़ यू फील यू आर कंफर्टेबल इनफ, आराम से आपके कट ऑफ तक पार हो जाता है. कट ऑफ एज इन जो आपका बेसिक क्वालिफाइड मार्क्स आपको 67 लाने हैं, आपका अगर हो जाता है तो इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है. ठीक है. और उधर प्रीलिम्स के पास में कुछ मॉक्स लगा लीजिएगा, जो 3 महीने मैंने आपको बोले ओनली फॉर द प्रीलिम्स इन 2023, उसमें से मॉक्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पहले से PYQs करके रखिएगा. इन केस you are having certain problem,
ट्राई एंड फाइंड आउट डिफरेंट सोर्सेज. आपका जो भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रॉब्लम है, किसी को मैथ्स में होता है, किसी को रीजनिंग में होता है, किसी को इंग्लिश में होता है, कॉम्प्रहेंशन में, व्हाट्स एवर इज़ योर प्रॉब्लमेटिक एरिया, उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करना अभी से शुरू कर लीजिए. तो ये दो चीज़ें भी साइमल्टेनियसली चलेगी. दे हैव नॉट बीन टॉक्ड अबाउट इन दी होल माई PDF earlier फॉर द रीज़न दैट उसका कोई स्पेसिफिक टाइम मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस में चलेगा, जस्ट लाइक द करंट अफेयर्स. ठीक है. So I hope I have covered every possible thing from my side. In case you have any query, I'm always reachable. Please do not forget to check the videos that I'm already uploading, and I will be coming with that another video very soon, जहाँ मैं बात करूँगी कि what is the plan for the next few months on this channel. ठीक है. चलिए then, see you guys. Thank you so much for hearing me out for this long. Take care. Bye bye. Have a good time.